Hello everyone, I Ruchika Sharma, faculty of Kanika's Nursing Academy, welcome you all. So today I am here to discuss about solved HHSC question paper which was held on Sunday, that is 22nd November 2020. So let's start with the nursing portion. So the first question is, which of the following muscle in the human body is also known as peripheral heart? कौन सी मसल है ह्यूमन बॉडी में जिसको हम पेरिफेरल हर्ट भी बोलते हैं? सो द राइट आंसर इज सोलियस, राइट? सो द रीजन व्हाई दिस सोलियस मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हर्ट, बिकॉज जो सोलियस मसल होती है इन द ह्यूमन बॉडी ये क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग venous blood back to the heart from the peripheral region. That's why it is called peripheral heart. Clear? Next question is, which among the following is the largest cavity in the human body? As you all know, the largest cavity in the human body is the abdominal cavity, or it is also called the peritoneal cavity, right? So the right answer is C, that is the abdominal cavity. Next question is, which of the following nerve in the human body may get injured intramuscular injection in the deltoid muscles? So हमेशा याद रखना, when during the intramuscular injection, अगर हम IM injection दे रहे हैं in the deltoid muscles of the arm, deltoid muscle of the arm, right? So the chances of the axillary nerve to get injured, तो वहाँ पे किस चीज़ के चांसेस हैं? जो एक्सिलरी नर्व है उसके चांसेस होते हैं इंजर होने के, राइट? बट अगर हम IM इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इनटू द बटक्स, राइट? IM इंजेक्शंस इनटू द बटक्स, तो यहाँ पे भी बहुत कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम बटक्स में IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं? सो द राइट आंसर इज द शियाटिक नर्व. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many bronchopulmonary segments are there in the human right lung? So total जो bronchopulmonary segments हैं in the right lung, that is 10, right? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे upper segments की, so in the upper segment में जो है that is the 3. जो हमारे पास मिडल लोब होता है, सॉरी, इन द अपर लोब दैट इज 3. अगर मैं बात करूँ मिडल लोब की, दैट इज 2, एंड लास्ट वन इज द लोअर लोब. तो लोअर जो लोब है उसमें आते हैं टोटल 5. सो टोटल जो राइट लंग में हमारे पास जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, सो दे आर टोटल 10 इन नंबर. क्लियर है? Now next question is, which one of the following is the salient feature in the Myasthenia gravis? As you all know, Myasthenia gravis जो है it is the autoimmune disease, right? Autoimmune disease है of the neuromuscular junction. So in Myasthenia gravis में होता क्या है? It occurs due to the presence of circulating antibodies, due to the presence of circulating antibodies किसके against the nicotinic acetylcholine receptor. This is also very important point. Question आता है कि जो Myasthenia gravis है वो किसकी वजह से होती है? So Myasthenia gravis जो है autoimmune disease है, right? So इसमें क्या होता है? There is the presence of the circulating antibodies किसके against nicotinic acetylcholine receptors. Next question is, now the next question is, widely asked for the laboratory investigations for the estimation of glomerular filtration rate. जो glomerular filtration rate है उसके estimation के लिए हमारे पास कौन सी investigations होती है? So that is the creatinine clearance. आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा in the acute renal failure और chronic renal failure. So acute and chronic renal failure में भी जो main indicator हम मानते हैं that is the creatinine clearance, right? So यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल GFR रेट, नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, समटाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? सो दैट इज द 125 ml पर मिनट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. क्लियर है? So the next question is, which of the following hormone mediates the milk ejection reflex? So the hormone for the milk ejection reflex is
ऑक्सीटोसिन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की, सो द फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा आता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन। समटाइम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिल्क इजेक्शन के लिए भी आते हैं कि विच हार्मोन मीडिएट द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज द ऑक्सीटोसिन। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए, सो दैट इज द प्रोलैक्टिन। क्लियर? नाउ the next question is the mechanism of action of contraceptive pills is based on. So as we all know, the main mechanism of action of the contraceptive pills to inhibit the ovulation. So the right answer is A, that is the inhibiting ovulation. Next question is a scientific study of the human population is called. So the scientific study of human population is called demography. अगर मैं बात करूँ what is psychology, so it is the study of human mind, that is psychology. Next question is what is meant by sex ratio. So as you all know, sex ratio क्या होता है हमारे पास, that is the ratio between the ratio of the females per 1000 male in the population, that is the sex ratio, right? Sometime question आता है normal sex ratio of India, normal sex ratio in India. So sex ratio जो है normal in India में that is the 946 per 1000. So 946 that is the female per 1000 male. So what is mean by sex ratio? Sex ratio is the number of females per 1000 male in the population. Now next question is hallucinations are. What is hallucination? So always remember hallucination जो है that is the disorder of perception, right? अगर हम बात करें disorder of perception तो वहाँ पे हमारे पास दो conditions आती हैं, that is the illusion, second one is the hallucination. But what is the difference between the illusion and the hallucination? In illusion में क्या होता है हमारे पास there is presence of stimuli, but जो hallucination है उसमें क्या होता है absence of स्टिमुलाई और एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था हेलुसिनेशंस आर. सो एज यू ऑल नो कि हेलुसिनेशंस क्या परसेप्शन डिसऑर्डर है. सो हेलुसिनेशन इज द परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन. अगर यहाँ पे आता perception occurring with external stimulation या occurring in the presence of external stimulation, so that is called the illusion, right? So the right answer is D. Hallucination is the perception occurring without external stimulation. Now next question is childhood disorders, that is enuresis. What is the meaning of enuresis? एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था enuresis का मीनिंग क्या होता है. As you all know, enuresis जो है enuresis हो गया, encorpresis हो गया, these all are the childhood behavioral disorders में आता है, right? So enuresis जो होता है it is also called bedwetting. समटाइम यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस के ऊपर. व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरेसिस? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द इमीप्रामिन. इमीप्रामिन. सो इमीप्रामिन जो है दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस. सॉरी. सो बेड वेटिंग और एन्यूरेसिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज द इमीप्रामिन, राइट? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन थी स्लीप वॉकिंग. सो स्लीप वॉकिंग अनदर नेम फॉर स्लीप वॉकिंग क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, दैट इज द सोमनेम्बुलिज्म. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द which of the following are the most common symptoms of opioid toxicity? So अगर opioid toxicity की बात करें, so opioid toxicity का जो सबसे most common symptom है that is the constriction of pupils या constricted pupils. Same यहाँ पे question आ सकता है what is the common symptom of cocaine toxicity? So अगर cocaine toxicity की बात करें तो वहाँ पे आपका right answer होगा dilation of pupils या dilated pupils. Clear? So हमेशा याद रखना ओपोइड टॉक्सिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो दैट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स. अगर कोकेन के ऊपर आता है तो दैट इज द डायलेटेड प्यूपिल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन? एज यू ऑल नोज राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन जो है इट इज द पैरासिटिक इन्फेक्शन. जो राउंडवॉर्म है द पैरासाइट दैट लिव इन द इंटेस्टाइन, राइट? एंड इट इज कॉन्टेजियस व्हेन इट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल, जब कॉन्टैक्ट में आता है विद द हेल्दी पर्सन. सो the drug of choice for the roundworm infestation that is the albendazole. So albendazole जो है that is drug of choice for the roundworm infestation.
Now the next question is, which of the following is the antidote for organophosphorus poisoning? This is most frequently asked question है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is antidote for organophosphorus poisoning? So organophosphorus poisoning के लिए जो एंटीडोट रहता है that is the atropine. So the right answer is B, that is atropine. So the next question is, the level of which of the following immunoglobulins will be raised in allergy? ये भी बहुत frequently asked question है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सेम क्वेश्चन जो है HPSSB में भी पूछा गया था. The level of which of the following immunoglobulin will be raised in allergic reaction? जब भी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रेज्ड होती है? सो दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन ई, राइट. अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम, हमेशा याद रखना इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन. समटाइम क्वेश्चन आ सकता है what is the largest immunoglobulin? So immunoglobulin M जो है it is largest, and अगर क्वेश्चन आता है abundant के ऊपर, so the abundant जो है that is immunoglobulin G. Clear? This is also important. Immunoglobulin G जो है that is abundant, और अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर, सो दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन एम, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following agent is used for disinfection of the surgical instrument against HIV? कौन सा हमारे पास यहाँ पे disinfectant agent use करते हैं for the disinfection of surgical instrument against HIV? So that is the 2% glutaraldehyde. This is the right answer, that is 2% glutaraldehyde, right. Next question is, the etiological agent of which of the following conditions was discovered by Robert Koch? So नाम से पता चल रहा है Robert Koch. So Robert Koch ने जो है वो the etiological agent of which of the following conditions? So obviously Robert Koch is related to the tuberculosis, right? That's why the tuberculosis it's also called the Koch disease. इसको हम क्या बोलते हैं? It is also called the Koch disease. Now the next question is, the genome of coronavirus consists of RNA, right? This is very simple question. Next is, which of the following pathogen causes gas gangrene? कौन सा पैथोजन है जो गैस गैंग्रीन कॉज करता है? सो दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस. क्लियर. एक ऑप्शन था कोरोना वायरस, ऑब्वियसली नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन था विब्रियो कॉलरा. विब्रियो कॉलरा एज यू ऑल नोज इट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द कॉलरा. क्लियर. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था गैस गैंग्रीन, सो दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस. अगर बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा जो मोस्ट कॉमनली, जैसे हमारे पास कौन सा कंडीशन होती है, निमोनिया हो गया, तो ये कॉज करता है. नेक्स्ट वन इज द, which of the following agent is used for the sterilization of disposable syringes? So disposable जो syringes हैं उनको sterilization के लिए जो agent use करते हैं that is the gamma radiation. This is also very important question. बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो disposable syringes हैं उनको sterilization के लिए हम कौन सा agent use करते हैं. So that is the gamma radiation. Clear? Sodium hypochlorite है, as you all know इसको हम bleach भी बोलते हैं. तो मेनली हमारे पास जो वाटर वगैरह होता है उसको डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट. या समटाइम जो ओटी टेबल्स होते हैं, जो आपकी ट्रॉलीज वगैरह होती हैं, उनको भी समटाइम हम फॉर द एज अ डिसइंफेक्शन हम यूज़ करते हैं. क्लियर. नाउ द फर्दर डिस्कशन विल बी डन बाय मिस लीला नेगी. Hello everyone, this is Leela Negi, faculty of Kanika's Nursing Academy, and I'm going to discuss the rest of the questions of HSSC staff nurse exam. So next question is, chorionic gonadotropin is secreted by. So as we all know that HCG is the important indicator for the pregnancy and it is secreted by the placenta. और अगर HCG हमारी increase हो जाती है, that will increase the multiple pregnancy, that will indicate the multiple pregnancy and Down syndrome. So next question is, which of the following is not a risk factor for pelvic inflammatory disorder? And the right answer is, that is use of diaphragm for contraception. So rest of the जितने भी हमारे options है distractors हैं, वहाँ पे आप देखोगे frequent vaginal dodging है, multiple partners हैं, prior episode of PID है, ये सारे risk factor हैं further pelvic inflammatory disease की, except the second one.
So next is in fetal distress dash is found in the amniotic fluid and the right answer is B, that is म्यूकोनियम. So हमने सुना है कि म्यूकोनियम एस्पिरेशन होती है बच्चों में जिसकी वजह से fetal distress होता है. So म्यूकोनियम जब भी पास कर लेता है बच्चा वूम में ही, that will cause the fetal distress. उसके अलावा अगर हम देखें वर्निक्स कैसियोसा हमें पता है that it is a creamy white कलर की सिक्रीशन होती है जो बेबी के स्किन में प्रेजेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें CSF और बाइल की, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड. So which of the following structure is also known as the living ligature of the uterus, and the right answer is middle layer of the myometrium. So living ligature of uterus का मतलब है कि ड्यूरिंग डिलीवरी और बिफोर द डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी मायोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं. सो मसल्स के साथ वहाँ पे माइन्यूट हमारे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं. सो क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है दैट टाइम पे ये जितनी भी हमारे कैपिलरीज हैं ये कंस्ट्रिक्ट होते हैं. सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरी इट विल प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस एंड इज मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम. So next is quickening in pregnant woman takes place at, quickening is the fetal movement that is felt by the mother, और quickening feel होती है at the time of 18th week of pregnancy. So right answer will be the B, that is 16th to 20th week of pregnancy. So next question is which one of the following is seen in preeclampsia? Preeclampsia means hypertension during the प्रेगनेंसी. सो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, प्रोटीनयूरिया, बिकॉज नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो वेट लॉस है, हाइपोटेंशन है, एक्सेसिव फेशियल हेयर है. ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती है. अगर इक्लेम्शिया है, सॉरी प्री इक्लेम्शिया है तो उस टाइम पे हाइपोटेंशन नहीं होगा, यहाँ पे हाइपरटेंशन होता है और वेट गेन होगा, साथ में प्रोटीनयूरिया है. ये 3 मेन सिम्टम्स हैं प्री इक्लेम्शिया का. और अगर इक्लेम्शिया की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा सीजर ऐड हो जाता है. So next question, which of the following is the mainly responsible for childhood illness? So अगर childhood illness की बात करें तो मेन जो कॉज है, मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है दैट इज malnutrition. So malnutrition is the main cause of childhood illness. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें सारी हमारी हेरिडिटरी डिजीज है बस एक को छोड़ के. सो दैट इज सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस इज नॉट एन हेरिडिटरी डिजीज. सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें थैलेसीमिया की, थैलेसीमिया भी आपकी हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन की किसी एक की डेफिशिएंसी हो जाती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज ऑल्सो सेक्स लिंक हेरिडिटरी डिजीज जिसमें हमारी क्लॉटिंग फैक्टर है 8th और 9th क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है. नेक्स्ट है सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है मेनली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें एक्सेसिव म्यूकस की फॉर्मेशन होती है, म्यूकस सिंथेसिस एक्सेसिव हो जाती है, दैट विल कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है. यहाँ पे हमारी एक्सेसिव लेवल ऑफ सोडियम प्रेजेंट होती है स्वेट में. ठीक है. नेक्स्ट सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ urinary bladder. So next, a ventriculoperitoneal shunt is used in the treatment of, right answer is A, hydrocephalus. Hydrocephalus is the inflammation or the accumulation of CSF around the brain, जिसकी वजह से जो ब्रेन है या हेड है, हेड का साइज इंक्रीज हो जाता है. मेनली ये बच्चों में होता है जिसको हमने ड्रेन करने के लिए, मतलब CSF को ड्रेन करने के लिए हम यहाँ पे ventriculoperitoneal shunt यूज करते हैं. नेक्स्ट कार्डियोमेगाली मीन्स inflammation and the increase the size of cardiac muscle. नेक्स्ट अगर एसाइटिस की बात करें, एसाइटिस का मतलब है कि excessive accumulation of fluid on the peritoneal cavity. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारी pleural cavity जो lungs के अराउंड कैविटी प्रेजेंट होती है. Next, which among the following is the sign of severe dehydration among the infant? And the right answer is B, that is drowsiness, depressed fontanelles and decreased skin turgor. So ये important indicator है dehydration का children में. So यहाँ option है, अगर आप देखिए excessive thirst कभी भी indicator नहीं होता है dehydration का. ठीक है. और अगर हम बात करें bulging fontanelle का, bulging fontanelle इन केस अगर बेबी में इंक्रीज हो रहा है CSF लेवल तो, या फिर ICP अगर इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में बल्जिंग फॉन्टेनल होगा, बट डिहाइड्रेशन के केस में हमेशा ही डिप्रेस्ड फॉन्टेनल होगा. सो द सेकेंड वन इज द राइट आंसर.
Next, which among the following is the most important post-operative parameter to be observed in a child immediately after tonsillectomy? And right answer is B, that is frequent swallowing. So frequent swallowing will indicate hemorrhage. अगर internal hemorrhage वहाँ हो रही है तो बेबी है या फिर जो child है वो frequently swallow करेगा, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे internal hemorrhage हो रही है. So next, severe generalized edema is called as, severe generalized edema को हम बोलते हैं NSR का, ठीक है. और अगर हम दूसरे डिस्ट्रैक्टर्स की बात करें, मिक्स एडिमा होता है इन केस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म. नेक्स्ट इज पिटिंग एडिमा. पिटिंग एडिमा हमें पता ही है कि जब भी वहाँ एडिमा फॉर्मेशन होगी, अगर उसको हम प्रेस करते हैं तो वहाँ डिम्पल की फॉर्मेशन होती है, दैट विल इंडिकेट कि पेशेंट को पिटिंग एडिमा है. नेक्स्ट डिपेंडेंट एडिमा मीन्स ग्रेविटी रिलेटेड एडिमा. ग्रेविटी की वजह से जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है लोअर पेरिफेरल रीजन में, तो दैट विल नोन एज या फिर दैट इज नोन एज डिपेंडेंट एडिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द परफ्यूज to reveal the glans penis is called, means inability to retract the glans penis is known as phimosis, ठीक है. उसके बाद अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, एपिस्पाडियस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस. और नेक्स्ट है हमारी क्रिप्टोकिडिज्म मीन्स इनएबिलिटी टू डिसेंड द पेनिस इनटू द स्क्रोटम. और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपोस्पाडियस मीन्स ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ऑन द वेंट्रल मीन्स बिलो द पेनिस इज नोन एज hypospadias. So next question is the diluent used for the reconstitution of BCG vaccine. मतलब BCG vaccines के लिए हम diluent कौन सी यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन. सो नॉर्मल सलाइन जब भी हम यूज करते हैं BCG की डाइल्यूटेशन के लिए, डाइल्यूशन के बाद BCG को हमने 6 आवर्स के अंदर यूज करना होता है, ठीक है. और नेक्स्ट है अगर डिस्टिल वाटर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो दैट विल कॉज रिएक्शन समटाइम, इसलिए हम यहाँ नॉर्मल सलाइन प्रेफर करते हैं. So next question, pap smear examination procedure to detect carcinoma cervix is the example of. So यहाँ इसका राइट आंसर बनेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन. सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या चीज़ आती है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. चाहे यहाँ पे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ले ले, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन हो या फिर पैप स्मीयर है, ये सारी चीज़ें आती है हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन में, दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि हमने बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज, जब हम हेल्थ एजुकेशन की हेल्प से रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, दैट विल comes under the primary prevention. So next हमारा specific prevention means prevention from a specific disease or specific disorder. For example अगर किसी patient को tuberculosis है, उसके लिए हम specifically dots start कर रहे हैं, या फिर किसी को cancer है, chemotherapy start कर रहे हैं, that will come under the specific prevention. Next हमारी tertiary prevention. tertiary prevention में आती है rehabilitation, और साथ में इसी में आएगी हमारी prevention of the complication and disability, ठीक है, that will come under the tertiary prevention. So next is infant mortality rate is expressed in terms of. So right answer इसका बनेगा B, that is ratio of the number of infant death to 1000 live births. कि 1000 live births में कितनी डेथ हो रही है इन्फेंट की, that will express infant mortality rate. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट है कम्युनिटी में, वो हमारी 1000 के ही 1000 से ही कैलकुलेट करके हम एक्सप्रेस करते हैं. बट इन केस ऑफ मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, वहाँ पे हम 1 लाख जितनी भी 1 लाख जितनी भी हमारी मेटर्नल वुमेन है वो कंसीडर करते हैं. बस वही एक डिफरेंट है, बाकी सब में हम 1000 ही लेके चलते हैं. Next, constant presence of a disease or infection within a given geographical area is called. इसका right answer होगा हमारा C, that is endemic. Endemic means constant presence of a disease in a particular geographical area. For example, जैसे हमारा कोई सीजन होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मानसून के टाइम पे कोई ऐसे एरिया होते हैं, स्पेसिफिक एरिया, चाहे यूपी है या फिर बिहार है, वहाँ पे डेंगू हमारा होता ही होता है एवरी ईयर मानसून में, ठीक है, तो वो क्या होगा? एंडेमिक. नेक्स्ट हमारी अगर हम बात करें एपिडेमिक का मतलब होता है सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था कोविड, तो कोविड-19 चाइना में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में उसका सडन आउटब्रेक हुआ था, तो इसलिए उसको हम बोलते थे एपिडेमिक. फिर बात करें हम एंडेमिक की. एंडेमिक मीन्स व्हेन द एपिडेमिक बिकम एंडेमिक, मीन्स जब वो हमारी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है डिजीज, दैट इज नोन एज पेंडेमिक, जिसको हम अभी कोविड-19 को पेंडेमिक बोलते हैं. और नेक्स्ट अगर हम स्पोरेडिक का मतलब देखें, तो स्पोरेडिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में
वो भी फ्रीक्वेंटली होगा और एक पर्टिकुलर कोई ड्यूरेशन नहीं होगी इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रेबीज या फिर प्लेग का लेके चलते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होगी ये डिजीज, पर उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होगा, वो किसी भी टाइम पे ये डिजीज हो सकती है। So next question is, who among the following is the founder of the International Committee of Red Cross? So International Red Cross की फाउंडर जो हमारे फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर हेनरी ड्यूनेंट। सो मिस्टर हेनरी ड्यूनेंट इसके फाउंडर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहता है। और आपकी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कब फाउंड हुई थी? ये हुई है हमारी 1920 में, इन द ईयर ऑफ 1920। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इज हेडक्वार्टर्ड एट, मीन्स हमारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन जेनेवा। सो ये जेनेवा में है और साथ में ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1899 में। So next question is, hardening and tightening of the skin and connective tissue is known as, and hardening and tightening of the connective tissue इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। राइट आंसर यहाँ पे हुआ स्क्लेरोडर्मा। और अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं पायोडर्मा। पायोडर्मा मीन्स स्किन डिजीज ही है, बस वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है। पायो मीन्स पस, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिथ्रोडर्मा, एरिथ्रोडर्मा का मतलब है एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन सरफेस। जब स्किन सरफेस की इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोडर्मा, और ये होती है मेनली ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम द मेडिसिन। किसी भी ड्रग या मेडिसिन के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एरिथ्रोडर्मा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा का अनदर नेम है विटिलिगो। ये सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। विटिलिगो इज ऑटो इम्यून स्किन डिजीज जिसमें हमारी हेल्दी स्किन है वो अफेक्टेड होती है बाय द एंटीबॉडीज ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, जो क्या कॉज करती है? वाइट पैचेस अराउंड द स्किन। आपने देखा होगा वाइट कलर की स्किन पैचेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं विटिलिगो एंड ल्यूकोडर्मा। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी मे एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर लीडिंग टू दैट इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, कोई पेशेंट की फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट इमोबाइल है, वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहा है, दैट विल कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल डीवीटी होगा, डीवीटी के बाद दैट थ्रोम्बस विल चेंज इनटू एम्बोलस और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसलिए जब भी सर्जरी होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पेशेंट्स को अर्ली एम्बोलिशन के लिए बोलते हैं कि अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोएम्बोलिस फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन बाय लोकल रबिंग इज कॉल्ड एज। जब हम स्किन में कोई मेडिसिन या कोई ऑइंटमेंट है, कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनक्शन, ठीक है। अगर हम इंस्टिलेशन की बात करें, इंस्टिलेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, वो हम करते हैं इंस्टिलेशन मेथड से अप्लाई। नेक्स्ट अगर इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन मीन्स पुटिंग समथिंग इनटू द बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल हम राइल्स ट्यूब है, जितने भी एनजी ट्यूब है, ठीक है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, वो सारी ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी कैविटी में। या फॉर एग्जांपल और अगर ड्रग की बात करें तो हम वेजाइनल और रेक्टल स्पोस्टरी इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, अप्लाई करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन। मीन्स मतलब मेथड है यहाँ पे इंसिजन, इंसर्शन। नेक्स्ट मेथड की बात करें दैट इज इंसफलेशन। इंसफलेशन मतलब ब्लोइंग ऑफ द मेडिसिन इनटू द बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल गैस है, वेपर्स है, इसको हम जब ब्लो करते हैं बॉडी कैविटी में, इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा निबुलाइजेशन की। निबुलाइजेशन की हेल्प से जब आप बॉडी में गैस को या फिर वेपर को जब ब्लो करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज इंसफलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर। क्लार्क रूल, जो हमारी क्लार्क रूल है, ये यूज करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ द पीडियाट्रिक डोसेज ऑफ द ड्रग। पीडियाट्रिक डोसेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्लार्क रूल यूज करते हैं। और दो हमारे पास और रूल्स हैं, यंग्स रूल एंड फ्राइड रूल। सो हमेशा याद रखना, क्लार्क रूल से एक और क्वेश्चन आता है कि हम कौन से रूल में बेबी का वेट यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज। सो क्लार्क रूल में हम बेबी का वेट यूज करते हैं ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास यंग रूल और फ्राइड रूल होता है। फ्राइड रूल हम यूज करते हैं इन्फेंट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है यंग रूल से कि यंग रूल हम यूज करते हैं बिलो 12 ईयर ऑफ एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Deficiency of vitamin B12 or folate in the body can lead to which of the following condition? So इसका right answer होगा megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is caused by the deficiency of vitamin B12 and folic acid in the diet. हमेशा याद रखना, अगर dietary deficiency हो रही है vitamin B12 और folic acid की, that will cause the megaloblastic anemia. और अगर हम बात करें pernicious anemia की, pernicious anemia भी थोड़ा सा इसकी तरह ही होता है, but pernicious anemia में क्या होगा, due to lack of intrinsic factor, जो intrinsic फैक्टर हमारी स्टमक बनाती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी वहां पे लैक कर गई, नहीं है, डेफिशिएंट है, उसकी वजह से क्या होगा, विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, दैट विल कॉज द पर्नीशियस अनीमिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें सिकल सेल अनीमिया की, तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीस है उसका स्ट्रक्चर है वो सिकल की शेप का हो जाता है. ठीक है, हमारी आरबीसीस अगर कनकेव है तो उसका साइज है वो सिकल लाइक हो जाएगा. ठीक है, दैट विल कॉज द एक्यूलेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ द दैट आरबीसीज इन द ब्लड वेसल्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लास्टिक अनीमिया इज ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो. जब बोन मैरो आपकी इमेच्योर आरबीसीज की फॉर्मेशन करती है उसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया, इसको हम एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज, जब हमारी आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही है. ठीक है, और हीमोलाइटिक अनीमिया का मेन रीजन होता है G6PD डेफिशिएंसी. जब इसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो दैट विल कॉज द हीमोलाइटिक अनीमिया. Hello everyone, this is Kamal Sharma, faculty of Kanika's Nursing Academy. Students, today we will discuss about Haryana Staff Selection Commission Staff Nurse 2020 exam which was conducted on 22nd November 2020. So students, let's start. So students, here is the first question. So first question is, which of the following city was established by Firoz Shah Tughlaq? So students, first of all you have to know about Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was the important ruler of one of the important ruler of Tughlaq dynasty. So Firoz Shah Tughlaq was established Hisar. So here is the right answer is Hisar. Next question is, Raja Nahar Singh was the Nawab of which place? So Raja Nahar Singh was the Nawab of Ballavgarh, which was located in Faridabad. So here is the right answer is option number C, that is Ballavgarh. And one of the most important point related to Raja Nahar Singh, Raja Nahar Singh was participated in the revolt of 1857, which was the first battle for the independence. So next question is, archaeological site Mitathal is situated at which place? So students, the right answer is Bhiwani. Archaeological site Mitathal is located at Bhiwani district of Haryana. Mitathal is the important site of Harappan civilization. Okay students, so next question is, who from Haryana state wrote Mehndi Rache Haath, a Hindi novel? So students, here is the right answer, Ramesh Chandra Jain. Option number D, Ramesh Chandra Jain was the writer of Mehndi Rache Haath. Next question is, which monthly magazine is published by Haryana Sahitya Academy? This is the simple question. So students, the right answer is Hariganda. Hariganda is the magazine which was established by Haryana Sahitya Academy. Next question is, Sur Samman Award is conferred by the government of Haryana for outstanding talent in which field? So students, the right answer is literature. Sur Samman is given in the literature field for the promotion of Hindi language, and this is the lifetime achievement award. Sur Samman is the lifetime achievement award. Next question is, from which of the following hills does the river Markandeya originate? So students, Markandeya river is the important river of Haryana. This is the important tributary of Ghaggar river. This is the important tributary of Ghaggar river, which is also the important river of Haryana. So Markandeya river is originate from Shivalik hills. So right answer is here Shivalik hills. Next question is, in which district of Haryana is the Chilchila Wildlife Sanctuary situated? So students, right answer is Kurukshetra in Haryana. There are total 8 wildlife sanctuaries, and Chilchila Wildlife Sanctuary is the smallest wildlife sanctuary of Haryana, and this wildlife sanctuary was established in 1986. So this wildlife sanctuary was located at Kurukshetra. So Kurukshetra is the right answer here. Next question is,
Out of the following, in which district of Haryana is the mustard crop yield highest? So students, here is the right answer is Mahendragarh. In overall Haryana, Bhiwani is the district. Bhiwani is the district where mustard crop production is the highest, but there Bhiwani is not in the option, so Mahendragarh is the right answer here. Next question is, in which of the following city was the Haryana's first national autism intervention search center established? So right answer is Gurugram. In Gurugram, National Autism Intervention Search Center was located. Next question is, under the Haryana, this was the important question, under the Haryana Mahila Evam Kishori Samman Yojana 2020, the following is provided free of cost to the eligible population. So student, here is the right answer is sanitary napkins. This scheme was started by Haryana government to boost the other important scheme, that is Beti Bachao Beti Padhao. Okay students, so in these schemes Haryana government give 6 napkin every month for women and girls whose aged between 10 to 45 years. So student, remember this point is important. Next is, Haryana government Muft Laptop Yojana was introduced in which year? So this scheme was started in current year, that is 2020, and in this scheme Haryana government give laptop to 10th class students. Next question is, which of the following pair research institute, university and its location is correctly matched? So first option is National Brain Research Center. Student, National Brain Research Center is located at Gurugram. So first answer is wrong. Next is JC Bose Dairy Research of Science and Technology by MCA Faridabad. So this institute is located at Faridabad, so this is the right answer, and option number B is the right answer here. National Dairy Research Institute is located at Karnal, so Manesar is the wrong here, and last is Lingya University is located at Faridabad, so this option also wrong. So option number B is the right answer here. Next question is, KMP Expressway stands for? So students, option number D is the right answer here. Kundli Manesar Palwal Expressway stands for KMP. So KMP is option number D is the right answer here. Next is, how many municipal corporations are there in state of Haryana? So students, right answer is 10. In Haryana there are total 10 municipal corporations. Next question is, Kala Am, where a war hero memorial has been developed, is situated near of city of? So student, the right answer is Panipat. Kala Am is the place where third battle of Panipat fought in 14 November 1961 between Maratha and Ahmad Shah Abdali. So remember this point, and Kala Am is located near the Panipat. Next question is, which of the following scheme of Haryana government promote local varieties of tree? So students, Har Ghar Haryali Yojana. Option number C, Har Ghar Haryali Yojana is the right answer here. So remember this point. Next is, which of the following is the state word of Haryana? This is the simple question. Black Francolin is the state word of Haryana. Next question is, in which district of Haryana is Satkumbh Fair organized? So students, Satkumbh Fair is organized in Sonipat district. So this is the answer. Which musical instrument is biggest form of Damaru? So student, here the right answer is Deru. Deru is the bigger form of Damaru. So Deru is the right answer here. Next is, which among the following is known as the father of folk theatre in Haryana? So students, right answer is Ali Baksh, and he belongs to Rewari district. He belongs to Rewari district. So remember this point, and father of the folk theatre is Ali Baksh. So option A is the right answer. Next question is, which player from Haryana state had won the gold medal for wrestling in 17th Asian Games? So students, 17th Asian Game was held in 2014 in South Korea. In
South Korea. And Yogeshwar Dutt won the gold medal in 2014 17th Asian Games for Haryana. So Yogeshwar Dutt is the answer here. Next question is, who among the following has the Speaker of Haryana Vidhan Sabha for maximum number of times? So option number A is the right answer. Har Mohinder Singh Chhatha is the right answer. He has been selected for 3 times as Haryana Vidhan Sabha Speaker. So students, remember this point. Next is International Day for Yoga is celebrated every year on 21st of June. So student, this is the simple question. Next is, the ongoing COVID-19 situation was declared by WHO as pandemic on 11th March 2020. So option number A is the right answer. WHO was founded on 7th April 1948. 7th April 1948. Remember this date. And the headquarter of WHO, that is in Geneva, Switzerland. Geneva, Switzerland. So students, remember this point. Next question is, in a certain language, survey is written as 846729 and fort is written as 1563. How would frost be written in that code? So students, इसमें एक बार देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर बोला गया है सर्वे, आपको एक वर्ड दिया गया है सर्वे, सर्वे का आपको कोड दिया गया है 846729 एंड फोर्ट का आपको कोड दिया गया दैट इज 1563. सो यहाँ पर देखिए, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको यहाँ पर मेनली कोड फाइंड करना है, वो लॉजिक फाइंड करना है जिस कारण से हमने सर्वे को इस तरह से लिखा, फोर्ट को इस तरह से लिखा. सो यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप यहाँ पर देखिए एक अल्फ़ाबेट है कॉमन, दैट इज आर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. यदि हम यहाँ पर नंबर चेक करें, थर्ड प्लेस पर आर जो है वो थर्ड प्लेस पर है. सो नंबर में भी 6 जो है वो थर्ड प्लेस पर है, यहाँ पर आर थर्ड प्लेस पर है, यहाँ पर भी 6 पर है. इसका मीनिंग है कि किसी पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए कोई पार्टिकुलर नंबर यहाँ पर यूज़ हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रोस्ट के लिए जो फ्रोस्ट वर्ड है इसके जो अल्फ़ाबेट हैं इनको हम देखेंगे और यहाँ से हम इनका कोड देखेंगे और आंसर कर सकते हैं. सबसे पहले फ्रोस्ट में दिया गया है एफ. सो यहाँ पर हम देखेंगे एफ. एफ के लिए क्या नंबर यूज़ हुआ, 1. आर को देखेंगे, आर के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर यूज़ हो रहा था, 6. यहाँ से हमें आर से क्लियर हुआ कि किसी पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए कोई पार्टिकुलर नंबर यूज़ हो रहा है. ओ के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है 5. एस के लिए आपके पास यहाँ पर कोड रहेगा दैट इज 8 एंड टी के लिए कोड रहा 3. सो 16583 इज द राइट आंसर हियर. सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rohan started walking toward north. So student, this question is related to direction. Rohan started walking toward north. After walking 20 meters, he turns toward left and walk 10 meter. So student, जैसे हमें यहाँ पर directions दी गई है, हम यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर उसकी डायग्राम बनाएंगे. तो देखो, रोहन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ. हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कि रोहन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया. ही वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, रोहन ने वॉक किया टुवर्ड नॉर्थ एंड ही वॉक 20 मीटर. सो रोहन वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ. आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स ही टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड आएगी इस साइड को. सो ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड वॉकड 10 मीटर. सो स्टूडेंट, ही वॉक 10 मीटर. सो 10 मीटर इज दिस एंड वॉक 10 मीटर. ही देन टर्न लेफ्ट. अगेन ही टर्न लेफ्ट. अगेन ही टर्न लेफ्ट. उसका जो लेफ्ट टर्न आएगा वो स्टूडेंट्स नीचे को आएगा, तो यहाँ पर 20 मीटर आ जाएगा. ही अगेन टर्न लेफ्ट. इसके बाद उसने जब ये 20 मीटर इसने नीचे को आ गया, इसके बाद फिर से लास्ट टर्न लिया उसने लेफ्ट की साइड को. लेफ्ट उसका यहाँ पर ईस्ट की साइड को होगा एंड वॉकड 20 मीटर. सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 10 मीटर. मीन 20 मीटर उसका यहाँ तक आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल ये बन गया 20 मीटर.
सो हमें यहाँ पर पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट. स्टूडेंट, दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ रोहन एंड द करंट पोजिशन ऑफ रोहन इज दिस. सो रोहन इज द डिफरेंस बिटवीन current point and starting point and current point is 10 meter. So 10 meter is the answer here. So student, यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा that is 10 meter. Next question is the height of a plant increased annually by 1/8 of its height. What will be its height after 2 years if it stands today at 64 centimeter height? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या बोला गया, एक प्लांट था जिसकी आज की डेट में कितनी हाइट है, दैट इज 64 सेंटीमीटर. And annually, every year this plant increase 1/8 of its height. It's mean प्लांट की जितनी हाइट थी वो अपनी हाइट का 1/8 इंक्रीज होता है. सो यहाँ पर आ गया फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर. सो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि 2 ईयर्स के बाद, ये जो करंट चल रहा है इसके 2 ईयर्स बाद मीन थर्ड ईयर में प्लांट की हाइट कितनी होगी. सो फर्स्ट ईयर में प्लांट कितना ग्रो करेगा, दैट इज 1/8 ऑफ इट्स हाइट. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1/8 कितना आएगा. अभी प्लांट की करंट हाइट है 64, 1/8 इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आया आपके पास 8. मीन यहाँ पर जो प्लांट है वो कितना ग्रो कर जाएगा, 8 सेंटीमीटर. 64 प्लस 8 सेंटीमीटर करेंगे दैट इज 72 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस 8 सेंटीमीटर कर दिया क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ग्रो किया. नेक्स्ट ईयर में फिर से वो 1/8 इंक्रीज करेगा, लेकिन किसका, ऑफ इट्स हाइट. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर उसकी हाइट कितनी हो चुकी है, दैट इज 72 सेंटीमीटर. सो ये 72 सेंटीमीटर का 1/8 ग्रो करेगा, 8 9 का 72. सो स्टूडेंट्स, दिस प्लांट वॉज इंक्रीज्ड बाई 9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाएगा. सो यहाँ पर थर्ड ईयर में इसकी कितनी हाइट हो जाएगी, दैट इज 87 सेंटीमीटर. सो दैट राइट आंसर इज 87 सेंटीमीटर हियर. सो दिस इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 11 मिनट 55 सेकेंड्स एंड 2 hours 11 मिनट एंड 5 सेकेंड्स. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बोला गया है कि 11 मिनट और 55 सेकेंड एंड 2 hour 11 मिनट एंड 5 सेकेंड्स के बीच रेशियो कैलकुलेट कीजिए. अब रेशियो का सेकंड मीनिंग रहता है डिवाइड. सो स्टूडेंट्स, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको टाइम दिया गया है इस टाइम को आप किसी एक यूनिट में ले आएंगे. जैसे कि यहाँ पर टाइम दिया गया है मिनट्स, यहाँ पर दिया गया है सेकंड्स में, ये सेकंड्स में है कुछ एक टाइम, यहाँ आवर्स, मिनट और सेकंड में. हम इनको तब तक कट नहीं कर सकते, रेशियो नहीं बना सकते जब तक कि ये एक सिंगल आपके पास यूनिट में ना आ जाए. सो आप इनको कन्वर्ट करेंगे सिंगल यूनिट में. फर्स्ट ऑफ ऑल 11 मिनट 55 सेकेंड्स. सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा इन सेकंड्स में, क्योंकि जब हम सेकंड में वैल्यू को चेंज करते हैं, बड़ी वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो 11 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, वो कैसे बनेगा, 11 मिनट इंटू 60. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 11 इंटू 60 ये आपके पास बन गया. यहाँ पर सेकेंड्स में टाइम प्लस 55 सेकेंड प्लस कर देंगे. सो ये आपके पास बना 660 प्लस 55. सो टोटल टाइम सेकेंड्स में कितना आ गया, दैट इज 715 सेकेंड्स. सो स्टूडेंट्स, एक आपके पास यहाँ पर 11 मिनट 55 सेकेंड का जो टाइम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पूरे को एक सेकेंड्स में. इसी तरह से हम यहाँ पर 2 hours 11 मिनट एंड 5 सेकेंड्स इसको हम चेंज करेंगे. सो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें आवर्स से जाना है मिनट में और मिनट से जाना है हमें सेकेंड्स में. तो हम यहाँ पर 2 hours को चेंज करेंगे 2 इंटू 60. जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया 1 आवर में 60 मिनट, सो ये बन गया मिनट में टाइम. आवर से हम 60 मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में चला गया. एक बार फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड बन जाएगा, क्योंकि आवर से हम पहले मिनट में जाएंगे फिर मिनट से सेकंड्स में जाएंगे. सो 2 इंटू 60 प्लस इसके नेक्स्ट है 11 मिनट. सो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से. ये आपके पास 11 मिनट चेंज हो गए सेकंड्स में और आगे आपके पास यहाँ पर 5 सेकंड्स हैं. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये बनेगा आपका 7200 प्लस 660 प्लस 5. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बनेगा आपका 5687.
7865 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ गई, एक वैल्यू बनी आपका 715 सेकेंड, दूसरी आपके पास है 7865 सेकेंड्स। अब इनको आप कट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज़ को कट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ 715 सेकेंड एंड अपॉन 7865। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को यहाँ पर कट करेंगे स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज़ को 5 से कट कर सकते हैं। सो 5 से कट करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा 143 एंड आपके पास नीचे वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 1 का 5, यहाँ पर 2 रिमेनिंग बचेगा 5 5 का 25, 3 5 7 35 एंड 3। फर्दर इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को 13 से कट कर सकते हैं। 13 1 का 13, यहाँ पर 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 13 से कट करेंगे, 13 1 13 2 एंड 31 21 एंड 11 से कट करेंगे, 11 11 का 121। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज 1:11। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मेन चीज़ थी इसमें आपका कि आपको यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को चेंज करना था इन सिंगल यूनिट, फिर उसके बाद वैल्यूज़ कट होनी थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजीवन शब्द में कौन सा समास है? सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अव्ययी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस तरह की क्रिया है? सो स्टूडेंट्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कोलाई इज यूज्ड एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द pollution of water with, that right answer is fecal matter, water with fecal matter. So fecal matter is the right answer here. Next question is which of the following are the correct appropriate to reduce global warming? So students the option number B is the right answer, improving efficiency of energy uses. As you know government promotes solar energy, use of solar energy to reduce the global warming. So option number B is the right answer. Next question is choose the correctly spelled word. So students option number D is the right answer, tranquility is the right answer here. So next question is choose the correctly spelled words. So students option number D is the right answer, veterinary. This is the right spelling of this question, so option number D is the right answer. Next question is scanner connected to a computer is a type of. So students the right answer is option number C, input device. Scanner can scan the images, document, anything else. So the last output of the scanner is in computer, so scanner is the input device. Okay students, next question is hard disk is the example of. So students right answer is magnetic memory. Hard disk is the example of a magnetic memory. Next question is who among the following is the founder of Microsoft? So student this is the simple question. Bill Gates is the founder of the Microsoft. Next question, CPU stands for central processing unit, and CPU also known as brain of computer. So remember this point, this is also an important point. Next is which of the following is not a storage device? That is CD-ROM, compact disc, read only memory. So this is not a storage device. Students next question is which out of the following is not a version of Windows? So Windows 7, 9 and 10, these all are the version of Windows. Windows Vista is not the version of Windows, so right answer is option number B. Which operating system is used in the Apple computers? So students that answer is Macintosh operating system are used in the Apple computers, so option number A is the right answer here. Next is which out of the following is used an electronic spreadsheet? So students spreadsheet is used in Microsoft Excel, so option number C is the right answer here. Next is DHTML stands for, so option number B is the right answer. DHTML stands for dynamic hypertext markup language, so option number B is the right answer. Next is the memory of a computer is commonly expressed in a term of kilobytes and megabytes, KB and MB.
A byte is made up of 8 binary digits. So students, option number B is the right answer. So this is all about GK parts of this exam. Thank you.